Hello guys, welcome to Unacademy. This is CA Ram Ahuja, a chartered accountant by profession and a teacher by passion. Welcome you all for fastest finger first financial market chapter, where we are dealing with the MCQs for you. It's a kind of fast revision for you guys. आप इसे बहुत अच्छी रिवीजन कर पाएंगे और अच्छे से इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे. So let's begin with the financial market topic. Before that, I have some important announcement for you guys. I'm chartered accountant. I'm BCom honors, qualified from Delhi University, and a chartered accountant. I teach both the subjects accountancy as well as business study for class 11th and class 12th for the plus courses on Unacademy app. You can follow me on Unacademy app. You will get all the notifications of my all the courses, upcoming special classes, right? Plus, this is the referral code going on. Yeah, if you join the plus course, you can use this referral code Ram Ahuja. You will get 10% straightforward discounts. So big opportunity for you. Before starting this quiz, let me introduce you to the very important plus features of our courses. The first feature is learning live from the comfort of your home. You can learn live from comfort of your home. You are anywhere, wherever you are, पहाड़ों में, जंगलों में, घर पे, स्कूल में, बस में. You have internet accessibility. You can learn it from at your comfort. तो कहीं भी आप क्लास ले सकते हो, किसी भी समय क्लास ले सकते हो, एनी टाइम. एनी टाइम मतलब अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज. अगर आप लाइव क्लास नहीं ले पाते हो तो आप रिकॉर्डेड चेक कर सकते हो. आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है. और क्लास मिस हो जाती है, आप उस रिकॉर्डेड लेक्चर को सुन सकते हो, नोट्स बना सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो. फिर डाउट क्लियरिंग सेशन क्लास भी होती है. एवरी फोर्थ क्लास इज ए डाउट क्लियरिंग सेशन क्लास. तो यू कैन क्लियर योर डाउट्स ऑल्सो. तो कभी भी आपकी पढ़ाई मिस नहीं होगी, राइट? और अगर मान लीजिए कोई क्लास आपने लाइव ले ली, आपको लगता है फिर भी आपको दोबारा से सुनने की जरूरत है, तो आप उसको दोबारा सुन सकते हो. दैट टू from the top educators of India only on one platform. Top educators of India only at one platform. That means you have educators from across India, from Delhi, from Mumbai, from Dehradun, from Chennai, from Bangalore, Odisha, Darbhanga. Means wherever top teachers are there, educators are there, they are going to teach you. एंड इट्स योर चॉइस. आप किस एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, जिसका आपको समझ आता है, आप उससे पढ़ सकते हैं, उनके लेक्चर सुन सकते हैं, लाइव क्लास में जा सकते हैं, डाउट सेशन क्लियर कर सकते हैं. एंड देयर इज एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ दिस सिलेबस. द एंटायर सिलेबस इज कवर thoroughly. And you have a live test series also. You can take test also. So that will upgrade your performance. और आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं. That is an important feature for you guys. स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा. आंसर राइटिंग सेशंस आपके लिए होंगे. प्लस वेरी इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल एंड करियर काउंसलिंग सेशंस आर आल्सो देयर. मेंटोरशिप एंड गाइडेंस सेशंस आर आल्सो देयर, ताकि आपको मोटिवेशन मिलता रहे फ्रॉम डिफरेंट बिजनेस पर्सनालिटीज, टॉप एजुकेटर्स. प्लस करियर काउंसलिंग सेशंस, ताकि आपको पता चल सके, यू कुड नो कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट है, कौन सा नहीं है. This is very important plus features. So you must join now. Use this referral code and join it now on the plus features courses. Daily practice section and weekly mock tests are also there for you. Keep it up guys. Then अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से बैचेस आपके चल रहे हैं. The batches running right now, so you can join all these batches. Class 11 Science and Commerce complete syllabus batch for 2021. Yeah, CBSE class for 11th Commerce, for 11th Science, both in English medium as well as in Hindi mediums are available. So you can join in Hindi medium also, you can join in English medium also. It is up to you, right? So both are available for you for all the subjects: accountancy, English, economics, business study, chemistry, physics, biology, maths. You can join these batches. For class 12th Science and Commerce complete syllabus batches 2021 are also going on. So you can join these batches also. These are also available in English as well as Hindi medium, both. So it's up to you guys. You can choose it, you can join it. So do join plus course now. Don't wait.
इतनी सारी फैसिलिटी के बाद यू शुड नॉट वेट. Class 11 Science and Commerce NCERT weekend batch. Let's suppose you don't have a time for the weekly batches, so you can join on weekend batches as well. That is very important feature for you guys. So you must join weekend batches also, right? That is additional beauty for you guys. You must join weekend batches also on Saturday and Sunday only. Yeah. Class 12 Science and Commerce NCERT weekend batches are also going on. So if you're in 12th class, you can join weekend batches for Saturday, Sunday. You can join me too also. I'm also taking Saturday, Sunday weekend batches for business study. 9 to 10:30 for class 12 and 11 to 12:30 for class 11th. Do join these batches. Yeah, be ready. Revision batches for science and commerce students are also going on. So you can join if you are in science for class 11th, for class 12th. These revision batches are going on. So you can join with according to your convenience of the time. So timings are also there. You can choose as per your convenience. Practice paper batches for science and commerce are going on for class 11th as well as class 12th. You can join these batches too. Now we have started the complete batch course on reading comprehension and creative writing skills also. From Shipra Mishra and Meenakshi Dhal, you can join these batches. For class 12th, the timings are 9 to 10 p.m. Monday to Friday. So Monday to Friday, you can join these batches from 9 to 10 p.m. And for class 11th, the timings are 3:30 p.m. to 4:30 p.m. So you can join these batches. A very important announcement for all, that is Humanities Plus courses are also started. You can join political science, history, geography, economics, sociology, psychology, English, and most opted optional subjects PE, IP and Hindi as well. So you can join these batches also. Humanities Plus courses. Keep it up guys, going on. Great. चलते जाइए. अब आप भी सोच रहे होंगे सर राम सर ने बोल दिया फीचर्ड एजुकेटर्स अक्रॉस इंडिया. सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द फीचर एजुकेटर्स फॉर ह्यूमैनिटीज प्लस कोर्सेज. देखिए कितनी लंबी लिस्ट है और ये लिस्ट यहाँ खत्म नहीं हो रही है. देयर इज अनदर लिस्ट, देयर इज अनदर लिस्ट. अब आपको समझ आ गया कि आपके पास कितने सारे फीचर्स हैं, कितने सारे एजुकेटर्स हैं फ्रॉम अक्रॉस इंडिया. सो यू कैन ज्वाइन देम, राइट? यू कैन ज्वाइन देम and do refer this referral code Ram Ahuja. If you use this referral code for class 11th and class 12th, you definitely are going to get 10% discount, and the fees is 938 rupees per month only for class 11th and 12th subscription, and for class 12 subscription it is 1125 rupees per month only. Do join this referral code, right? So let's begin with the quiz guys, and your first question is before you. It is an account which an Indian citizen must open with the depository participant, banks and stockbrokers, to trade in listed securities in electronic form. Option A, saving account. B, current account. C, demat account. And D, recurring deposit account. आपको करना क्या है, आपका इसका जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में डालना है. क्वेश्चन 1 और आपका जो ऑप्शन है, इसी से पता चलेगा कि आप कितने कमिटेड हैं और आपका आंसर क्या है. तभी आप या तो विन करेंगे या लर्न करेंगे. आइदर यू विन और यू लर्न, राइट? तो अगर करेक्ट आंसर है तो आप जीत गए, और अगर आपका गलत आंसर है तो आपने एक नई चीज लर्न कर ली. प्लीज लॉक योर ऑप्शन. सोचने में समय लग रहा है. ये कौन सा अकाउंट है? ओके, सम ऑफ यू हैव लॉक्ड द आंसर.
चलिए अब आपको आंसर दिखा देते हैं. द करेक्ट आंसर इज सी, डीमैट अकाउंट. It is an account, Demat account is an account which an Indian citizen must open with the depository participant, banks, stockbrokers to trade in listed securities in electronic form. Next question before you. The electronic book entry form of holding and transferring shares is called dash. The electronic book entry form of holding and transferring shares is called dash. A. Dematerialization, B. Rematerialization, C. Demat account, or D. Current account. The electronic book entry form of holding and transferring shares is called dash. A. Dematerialization, B. Rematerialization, C. Demat account, and D. Current account. क्या कहते हैं बताइए. सोचिए, समझिए, फिर आंसर कीजिए और आंसर को लॉक जरूर कीजिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लॉक योर आंसर. Yes, please lock your answer and mention in the comment box. The electronic book entry form of holding and transferring shares is called dash. Dematerialization, rematerialization, demat account, and current account. And the correct answer is dematerialization. So congratulations to all जिन्होंने correct answer किया. Great, keep it up guys. The third question is electronic holdings reconverted into physical certificates are called. Option A, dematerialization. Option B, rematerialization. Option C, demat account. Or option D, current account. Electronic holdings reconverted into physical certificates are called dash. A, dematerialization. B, rematerialization. C, demat account, and D, current account. आपको आंसर लॉक करना है नीचे जी. बिल्कुल. You have to lock your answer in the comment box. Choose कीजिए question 3 and your option. And your correct answer is rematerialization. Electronic holdings reconverted into physical certificates. दोबारा से जो इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट हो चुके हैं उसको फिजिकल सर्टिफिकेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं रीमैटेरियलाइजेशन. क्वेश्चन 4. हाउ मेनी डिपॉजिटरीज आर ऑपरेशनल इन इंडिया? ऑप्शन ए 1, बी 2, C 3, or D 4. How many depositories are operational in India? कितनी डिपॉजिटरीज हैं जो इंडिया में ऑपरेशनल हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4.
हाउ मेनी डिपॉजिटरीज आर ऑपरेशनल इन इंडिया? आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। डिपॉजिटरीज क्या होती हैं? जहां पर नहीं 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 नहीं, अगर मैंने ये बता दिया आपको तो हो सकता है आने वाले क्वेश्चन में आपको हेल्प मिल जाए। सॉरी फॉर दैट। इसके लिए आप मेरी स्पेशल क्लासेस और प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो कि डिपॉजिटरीज क्या होता है। हाँ जी, अभी बताना गलत हो जाएगा ना, नहीं तो आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उस पे हो सकता है कि आपको इसका क्लू मिल जाए। तो इस गेम में, क्विज में तो नहीं बता पाऊंगा मैं आपको, बट करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिपॉजिटरीज आर ऑपरेशनल इन इंडिया। मैं आपको समय देता हूं, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन नंबर डालिए, क्वेश्चन 4 और आपका ऑप्शन ए बी सी और डी। ध्यान रखिए हर सिचुएशन में आपका ही फायदा है। अगर आंसर सही हुआ तो चेयर अप, और अगर गलत हो जाता है तो यू विल लर्न समथिंग न्यू। दोनों सिचुएशन में आपकी विन विन सिचुएशन है। लेट मी हैव द करेक्ट आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज 2। जी हाँ, 2 डिपॉजिटरीज होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो अभी आने वाले क्वेश्चंस में आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो को वॉच कीजिए, आपको पता चल जाएगा 2 डिपॉजिटरीज कौन कौन सी हैं। द टर्म NSDL स्टैंड्स फॉर नेशनल सर्विसेज डिपॉजिटरी लिमिटेड। देखा, आपने कहा था ना, मैंने कहा था 2 डिपॉजिटरीज हैं, एक ये रही NSDL। अब NSDL की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको बताना है। मुझे पता है NSDL शॉर्ट में तो पता होता है, बट फुल फॉर्म में थोड़ी सी दिक्कत आती है। जैसे नेशनल सर्विसेज डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। बड़े मिलते जुलते नाम है सारे NSDL के। आपको बताना है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। द टर्म NSDL स्टैंड्स फॉर, चूज कीजिए ऑप्शन ए बी सी और डी, और आपको समय मिलता है, आपको इसको मेंशन करना है। प्लीज, गिविंग यू द टाइम, प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। NSDL stands for National Securities Depository Limited। जी हाँ, द टर्म NSDL stands for National Securities Depository Limited। अगर आपने विन किया है तो चीयर अप, ग्रेट, और नहीं तो यू लर्न समथिंग, राइट, दैट्स ग्रेट। द टर्म CDSL, हमने, आपको याद होगा प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि डिपॉजिटरी कितने हैं जो ऑपरेशनल हैं, 2, एक NSDL और दूसरा CDSL। अब यहां भी ये क्वेश्चन आता है कि CDSL की फुल फॉर्म क्या है। The term CDSL stands for A. Central Depository Securities Limited, B. Central Depository Services Limited, C. Central Department Services Limited, और D. Central Department Securities Limited। अगर आप तुक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं पक्का कहता हूं कि आपका आंसर क्या होगा, A, B, C और D। मुझे पता है इसका आंसर मैक्सिमम लोग क्या देने वाले हैं, या तो वो A देंगे या इसके अलावा वो देंगे D। जी हाँ, A और D मैक्सिमम लोग आंसर देंगे। और जो भी आपका आंसर है, आई डोंट नो व्हाट्स योर आंसर, आपको क्या लगता है, मे बी आपका आंसर करेक्ट हो, मे बी आपका आंसर रॉन्ग हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता।
वो तो मुझे तब मालूम चलेगा जब आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे. प्लीज मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. द टर्म CDSL stands for what? Please mention in the comment box your answer. The term CDSL stands for what? Please mention your answer in the comment box. लॉक कर दीजिए. इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर करेक्ट था या नहीं था. कर दीजिए मेंशन भाई. क्या फर्क पड़ेगा, आपको कंफर्म हो जाएगा, आप जिंदगी भर आंसर याद रहेगा आपको. The term CDSL stand for Central Depository Services Limited. मैंने एक क्यों कहा था, क्योंकि यहां पर सिक्योरिटी लिखा हुआ है और NSDL के अंदर क्या था, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड. ये फर्क है जहां पर अक्सर स्टूडेंट्स चूक जाते हैं और गलत आंसर कर देते हैं. NSDL के अंदर में सिक्योरिटी वर्ड यूज किया गया है एस की जगह पर, और CDSL में एस की जगह पर वर्ड यूज किया गया है सर्विसेज लिमिटेड. तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड. तो यहाँ सर्विसेज वर्ड है, सिक्योरिटी वर्ड नहीं है. और मुझे उम्मीद थी यहाँ पर आप सिक्योरिटी वर्ड से आप ए या डी में जाएंगे और आंसर गलत होने का पूरा चांसेस था. वेल डन. अगर आपने अच्छा आंसर किया है, इट्स गुड, ग्रेट फॉर यू गाइस. और नहीं तो आज आपने एक नई चीज सीख ली कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है, वहां वर्ड सिक्योरिटी यूज किया गया है, यहाँ पर वर्ड सर्विसेज यूज किया गया है. गुड गाइस. Next question for you guys. Dash market is a market for the creation and exchange of financial assets like shares, debentures, etc. क्वेश्चन है, डैश मार्केट इज ए मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा. और ऑप्शन ए है मनी मार्केट, बी है कैपिटल मार्केट, सी है प्राइमरी मार्केट और डी है फाइनेंशियल मार्केट. अगर आपको कैटेगराइजेशन नहीं पता कि फाइनेंशियल मार्केट कौन सी मार्केट किसके अंडर में आती है, तो आपको यहां कंफ्यूजन जरूर होगी. जी, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, ये सब मार्केट एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. एक मार्केट है जो दूसरे के अंडर में आती है. अब कौन सी किस में आती है ये आपको पता होना चाहिए. दैट शुड बी वेरी क्लियर. इज इट मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट और प्राइमरी मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट, ये आपको बताना है. तो आपको देखना है कि आप कौन सी मार्केट को चूज करते हैं. डैश मार्केट इज ए मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा. मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट. मुझे उम्मीद है कि आपने अपना आंसर लॉक जरूर कर दिया होगा. मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूं कि आप बहुत अच्छे हैं और आप अपना आंसर बिल्कुल ट्रूली फेयर तरीके से नीचे दर्ज कराएंगे, कमेंट बॉक्स में डालेंगे. क्वेश्चन 7, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी, जो भी आपको करेक्ट लिखता है आप उसको मेंशन कीजिए. ज्यादा समय नहीं लगेगा. राइट. थैंक यू सो मच फॉर मेंशनिंग द आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज फाइनेंशियल मार्केट. Financial market is a market for the creation and exchange of financial assets like shares, debentures, etc. Good guys. Instruments with a maturity of less than 1 year are traded in the dash market.
Instruments with a maturity of less than 1 year are traded in the dash market. Option A, money market. Option B, capital market. C, primary market. Or D, secondary market. Choose your option wisely, please. लॉक कर दिया जी आपने? आप सोच रहे हैं कि आंसर बता दिया जाए? तो चलिए, आप अगर आंसर चाहते हैं तो मैं आपको आंसर बता देता हूं, बट बेटर होगा कि आप आंसर को लॉक कर दें। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आंसर डाल के इसको लॉक कर दीजिए प्लीज। मैं पर्सनली सारे आंसर्स चेक करूंगा आपके। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वो भी आपका क्लैरिफाई किया जाएगा। प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। चलिए, मैं आपको दोबारा टाइम दे देता हूं कमेंट बॉक्स में डालने के लिए। सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालना है और आपका ऑप्शन डालना है। And the correct answer is money market. Instruments with a maturity of less than 1 year are traded in the money market. Instruments with a maturity of more than 1 year are traded in the dash market. तो इंस्ट्रूमेंट जो जिनकी मेच्योरिटी मोर देन 1 ईयर होती है उसको कहाँ ट्रेड किया जाता है? Instruments with a maturity of more than 1 year are traded in the dash market. Options are instruments with a maturity of more than 1 year are traded in the dash market. A, money market. B, capital market. C, प्राइमरी मार्केट। और डी, सेकेंडरी मार्केट। इससे पहला क्वेश्चन था लेस देन 1 ईयर, अब आ गया मोर देन 1 ईयर। आई थिंक अब आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। इंस्ट्रूमेंट अगर लेस देन 1 ईयर होता है तो कौन सी मार्केट में ट्रेड किया जाता है, और मोर देन 1 ईयर होता है तो कौन सी मार्केट में ट्रेड किया जाता है। आपके कॉन्सेप्ट्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपके आंसर्स भी आपको मालूम चलते जाएंगे। मैं आपको टाइम देता हूँ दोबारा से लॉक करने के लिए। काइंडली लॉकडाउन, हाँ सॉरी, लॉकडाउन ये वर्ड बार बार रिपीट होता है। काइंडली लॉक योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स फास्ट। क्वेश्चन 9, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। एंड द करेक्ट आंसर इज कैपिटल मार्केट। अगर इंस्ट्रूमेंट मेच्योरिटी जो है लेस देन 1 ईयर है तो मनी मार्केट में जाएंगे, और इंस्ट्रूमेंट की मेच्योरिटी मोर देन 1 ईयर है तो हम कैपिटल मार्केट में जाएंगे उसको ट्रेड करने के लिए। Financial markets are classified on the basis of financial markets are classified on the basis of dash. A, amount.
बी नेचर ऑफ सिक्योरिटीज, सी नेचर ऑफ मार्केट एंड डी मैच्योरिटी। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चंस को बड़े ही ध्यान से समझा है, सही आंसर किया है, या गलत आंसर पर आपने सही आंसर को ध्यान से सुना है, तो इसका आंसर आप बहुत इजीली कर सकते हैं। यू नीड नॉट टू वरी, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डैश, आप बहुत इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना क्या है, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को लॉक करना है, डालना है क्वेश्चन 10 और उसके साथ में ऑप्शन, जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन आपको लगता है वो मेंशन कीजिए, ए बी सी और डी। वेट कर रहा हूं आपके लॉक करने का, आप मेरा इंतजार मत कीजिए, मैं आंसर बता दूंगा पक्का, तो उससे पहले लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया आंसर। चलिए, द करेक्ट आंसर इज मेच्योरिटी। आपको याद होगा हमने कहा था लेस देन 1 ईयर, मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर, मेच्योरिटी मोर देन 1 ईयर। तो यानी कि फाइनेंशियल मार्केट को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो वो किस बेसिस पर करते हैं? इट इज नॉट अमाउंट, इट इज नॉट नेचर ऑफ सिक्योरिटीज, इट इज नॉट नेचर ऑफ मार्केट, it is only on the basis of maturity period. So financial markets are classified on the basis of maturity. Just for your remembrance, a recall for you guys, my referral code is Ram Ahuja, and if you join the plus course and use this code, you are going to get 10% discount. Yeah, you're going to get 10% discount. And for class 11th and 12th subscription, the fees is only 938 rupees per month. That's it, 938 rupees per month for unlimited accessibility of all the courses. For class 12th, subscription is only 1125 rupees per month. Yes, for class 12 subscription, the amount is 1125 rupees per month only. So you can use this code, referral code Ram Ahuja, and you will get 10% discount while joining plus courses. So do join now the plus courses and use this code. So all the best. The Dash market is a market for short-term funds which deals in monetary assets whose period of maturity is up to 1 year. These assets are close substitutes for money. It is a market of low risk. The Dash market is a market for short-term funds which deals in monetary assets whose period of maturity is up to 1 year. These assets are close substitutes for money. It is a market of low risk. Option A, money market, B, capital market, C, primary market, and D, secondary market. Please lock your option in the comment box below. लॉक कर दें जी, एंड द करेक्ट आंसर इज मनी मार्केट।
आपको तो इसका क्लू पहले ही मिल जाना चाहिए था। देखिए यहाँ पर लिखा है मॉनेटरी एसेट्स हुज पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर, पहला क्लू। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स और मनी होता है और लो रिस्क होता है। ये क्लू आपके लिए आई थिंक सफिशिएंट था। हुज पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर, दैट इज मनी मार्केट। The money market is a market of dash. The question is, the money market is a market. The money market is a market of dash. A. Short-term funds. B. Clause substitutes for money. C. Low risk. And D. All of the above. The money market is a market of dash. Option A. Short-term funds. Option B. Clause substitutes for money. Option C. Low risk. And option D. All of the above. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मुझे लगता है आपको इसका आंसर जरूर जरूर मेंशन करना चाहिए कमेंट बॉक्स में, और ये डेफिनेटली करेक्ट होगा। जी हाँ, क्योंकि अगर अब तक आपने सारे क्वेश्चन बड़े ध्यानपूर्वक सुने हैं तो यू डेफिनेटली एबल टू आंसर दिस। दिस इज रिपीटेशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैव ऑलरेडी डन। प्लीज कम मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आई गिव यू टाइम अगेन। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये हमने शायद पिछले क्वेश्चंस में ही पढ़ा था मनी मार्केट के बारे में, कि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, क्रॉस सब्सिट्यूट्स और मनी होता है। रिस्क लो होता है क्योंकि मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर है, तो रिस्क भी कम हो गया। इसलिए अगर मैं बात करूँ द मनी मार्केट इज ए मार्केट ऑफ डैश, तो इट इज शॉर्ट टर्म फंड्स, क्लोज सब्सिट्यूट्स एज वेल एज लो रिस्क। Who are the major participants of money market? Question 13. Who are the major participants of money market? ऑप्शन सी में आप जोड़ सकते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। क्वेश्चन 13 है हु आर द मेजर पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट। ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी कमर्शियल बैंक्स, ऑप्शन सी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। अब इस वर्ड को पूरा कर लीजिएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। सॉरी, ये टाइपिंग एरर कह सकते हैं आप, कंप्लीट नहीं है इसके अंदर में। आई टेल यू इसे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और डी ऑल ऑफ द अबव। आपको आंसर चूज करना है। मुझे पता है थोड़ा ट्रिकी है और इन डेप्थ क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर कर इनकरेक्ट होने के चांसेस हैं। तो अपने आंसर को वाइसली चूज करके कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और लॉक कीजिए। हु आर द मेजर पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट?
चलिए, टाइम हो गया आपके करेक्ट आंसर का, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. The major participants of money market are RBI, commercial banks, non-banking finance companies. All are the major participants of money market. अरे, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? Who are the major participants of money market? जरा ऑप्शन चेक करते हैं. नहीं, it's a different question. I mean, question is same, but the options are different. So in totality, it's a different question. Who are the major participants of money market? A. Large corporate houses. B. Mutual funds. C. State government. Or D. All of the above. Question 14. Who are the major participants of money market? Option A. Large corporate houses. Option B. Mutual funds. Option C. State government. Option D. All of the above. अभी तो हमने पढ़े थे मेजर पार्टिसिपेंट्स लास्ट क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में अब आपको बताना है कि कौन सा और मेजर पार्टिसिपेंट्स है जो मनी मार्केट में जोड़ा जा सकता है. इज इट लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस और म्यूचुअल फंड्स और स्टेट गवर्नमेंट और ऑल ऑफ द अबव? बताइए जी, बताइए. हु आर द मेजर पार्टिसिपेंट्स? कोई एक आध जुड़ जाएगा. कौन सा जुड़ेगा बताइए? ए जुड़ेगा, बी, सी, या तीनों जुड़ सकते हैं मेजर पार्टिसिपेंट्स में? अब तो कंफ्यूजन होना जायज है भाई. चलिए, जो भी आपका ऑप्शन है उसको लॉक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए. प्लीज लॉक योर ऑप्शन and mention in the comment box. Who are the major participants of money market? A. Large corporate houses. B. Mutual funds. C. State government. Or D. All of the above. The correct answer is all of the above. मुझे मालूम था कि आपको ये लग रहा होगा कि शायद एक आध कोई और होगा मेजर पार्टिसिपेंट्स जो जुड़ जाएगा, और खासकर मेजर पार्टिसिपेंट्स में आपको लग रहा होगा लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस. तो स्टेट गवर्नमेंट तो लग ही नहीं रहा होगा कि ये आंसर हो भी सकता है. अब म्यूचुअल फंड नहीं लग रहा होगा. तो मुझे उम्मीद थी कि आपका आंसर बहुत चांसेस है कि गलत होगा. बट चेयर अप गाइस, जिनका आंसर करेक्ट है, वेल डन. अगर आपने ये आंसर भी करेक्ट किया है तो बहुत अच्छी बात है. यू हैव ए डीप इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द मनी मार्केट. Identify which of the following is not the feature of money market. Identify which of the following is not the feature of money market. यानी आपको बताना है कि कौन सी ऐसी फीचर है जो मनी मार्केट की नहीं है. ए. हाईली लिक्विड. बी. क्लोज सब्सटीट्यूट्स फॉर मनी. सी. हाई रिस्क. और डी. शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट. Identify which of the following is not the feature of money market. A. Highly liquid. B. Close substitutes for money. C. High risk. And D. Short term debt instrument. कौन सी नहीं है ये आपको बताना है.
चूज कीजिए वाइजली अपनी ऑप्शन को और लॉक कीजिए कमेंट बॉक्स में। लॉक कर दिया जी। प्लीज मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स बिलो। Identify which of the following is not the feature of money market. A. Highly liquid. B. Close substitutes for money. C. High risk. And D. Short-term debt instrument. The correct answer is high risk. आपको याद होगा हमने पीछे अभी क्वेश्चन किए थे, उसमें क्वेश्चन था मनी मार्केट इज ए मार्केट ऑफ लो रिस्क। मैंने आपसे शेयर भी किया था लो रिस्क क्यों होता है, क्योंकि मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाते हैं उसका मेच्योरिटी पीरियड इज लेस देन 1 ईयर। तो द इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन मनी मार्केट आर फॉर लेस देन 1 ईयर, इसलिए वहां पर रिस्क जो होता है वो कंपैरेटिवली लो होता है। हाईली लिक्विड होते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लोज सब्सिट्यूट फॉर मनी होता है, करेक्ट। शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, करेक्ट। बट हाई रिस्क होता है, दिस फीचर इज नॉट ऑफ मनी मार्केट। इसका मतलब ये स्टेटमेंट या ये जो फीचर है ये इनकरेक्ट है। दिस इज नॉट द फीचर ऑफ मनी मार्केट। Regulation of takeover bids by companies. Identify the type of function performed by SEBI. Regulation of takeover bids by the companies. Identify the type of function performed by SEBI. Option A, regulatory functions. Option B, protective functions. Option C, development functions. Option D, none of the above. आपको बताना है कि ये जो फंक्शन है ये सेबी की कौन सी कैटेगरी में आता है, सॉरी गाइस, कौन सी कैटेगरी में आता है। विच टाइप ऑफ फंक्शन इज दिस, टाइप ऑफ फंक्शन बताना है जो सेबी परफॉर्म करती है। इट कुड बी रेगुलेटरी, इट कुड बी प्रोटेक्टिव, इट कुड बी डेवलपमेंट, इट कुड बी नन ऑफ द अबव। तो आपको ये बताना है कि कौन सी कैटेगरी में आता है ये फंक्शन। देखिए वैसे तो ये आंसर बहुत ही इजी है, अगर क्लू को आप समझ गए तो बहुत इजी है। मैं फिर भी आपको टाइम दे रहा हूं, मेंशन कीजिए, ये आपका आंसर 100% करेक्ट होगा। आई नो बहुत इजी क्लू है, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। प्लीज मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि ये आंसर करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 16, ऑप्शन डालिए ए, बी, सी और डी। एंड द करेक्ट आंसर इज रेगुलेटरी। भैया रेगुलेशन वर्ड से ही पता चल रहा था कि ये रेगुलेटरी फंक्शन है, तभी तो मैंने कहा था बहुत इजी है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिनका आंसर करेक्ट है, जिन्होंने मेंशन किया, इसको लॉक किया, दैट्स ग्रेट। मैं समझ गया कि आपने आंसर इसको लॉक किया है, दैट्स परफेक्टली फाइन, वेरी गुड गाइस। A dash is basically an instrument of short-term borrowing by the Government of India maturing in less than 1 year.
A dash is basically an instrument of short-term borrowing by the Government of India maturing in less than 1 year. Option A, trade bill. Option B, commercial bill. Option C, treasury bill. And option D, certificate of deposit. आपके पास ऑप्शंस हैं. काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में. A dash is basically an instrument of short-term borrowing by the Government of India maturing in less than 1 year. A, trade bill. B, commercial bill. C, treasury bill. And D, certificate of deposit. आपको बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मे बी आपका आंसर करेक्ट हो सकता है. डू राइट दिस आंसर इन द कमेंट बॉक्स. डू राइट दिस आंसर इन द कमेंट बॉक्स. जी, प्लीज लॉक योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स बिलो. क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन ए, बी, सी और डी. लॉक कर दिया जी आपने ऑप्शन. चलिए आपको करेक्ट आंसर दिखा देते हैं. द करेक्ट आंसर इज ट्रेजरी बिल. A treasury bill is basically an instrument of short-term borrowing by the Government of India maturing in less than 1 year. यानी ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है क्योंकि इसकी मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होती है, जो आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बोरोइंग का एक सबसे अच्छा ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल. They are issued at a price which is lower than their face value and repaid at par. The difference between the price at which they are issued and their redemption value is the interest receivable on them and is called discount. Question is, they are issued at a price which is lower than their face value and repaid at par. The difference between the price at which they are issued and their redemption value is the interest receivable on them and is called discount. Option A, treasury bill. Option B, commercial bill. Option C, trade bill. And option D, certificate of deposit. Choose your answer wisely. क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा नहीं, बहुत अच्छा है जी. हाँ, जो क्वेश्चन आसानी से ना निकल पाए जिसका आंसर वो क्वेश्चन तो बहुत अच्छा होता है. डेफिनेटली यू कैन हैव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. प्लीज लॉक योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स बिलो. द क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, वॉट एवर यू लाइक. आंसर को आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया, श्योर, लॉक कर दिया, तभी मैं आपको आंसर दिखा पाऊंगा और आप अपने आप को चेक कर पाएंगे कि आप कितने पानी में हैं. दैट मीन्स आप अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर पाएंगे. ये चैप्टर कितना अच्छा आपने अंडरस्टैंड किया ये आपको पता चल पाएगा. प्लीज मेंशन आंसर इन द कमेंट बॉक्स बिलो. क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन ए, बी, सी और डी. चलिए आंसर लॉक कर देते हैं आपके साथ में. द करेक्ट आंसर इज ट्रेजरी बिल.
It is repaid at par. Right? Issued at discount and repaid at par. और जो इंटरेस्ट रिसीव किया जाता है उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं. That is called treasury bill. What is the purpose of issuing commercial paper by large and credit-worthy companies? The question is, what is the purpose of issuing commercial paper by large and credit-worthy companies? Option A, working capital needs. Option B, seasonal funding. Option C, flotation cost. Option D, any of the above. मतलब किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है कमर्शियल पेपर. क्या ये आपको बताना है. What is the purpose of issuing commercial paper by large and credit-worthy companies? लॉक कर दीजिए आपका आंसर. Please mention in the comment box below. Question number 19, option of your choice A, B, C, D. Yes, the correct answer is any of the above. यानी कमर्शियल पेपर जो है वो लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज किसी भी ऑप्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो वर्किंग कैपिटल नीड्स हो, चाहे वो सीजनल फंडिंग हो, चाहे वो फ्लोटेशन कॉस्ट हो. किसी भी पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है. In primary markets, first time issued shares to be publicly traded in stock markets is considered as. Question 20. In primary markets, first time issued shares to be publicly traded in stock markets is considered as. Option A, traded offering. Option B, public markets. Option C, issuance offering. और ऑप्शन डी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. यानी आपको ये बताना है कि प्राइमरी मार्केट में जो फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू किए जाते हैं और पब्लिकली ट्रेड किए जाते हैं उसको स्टॉक मार्केट में क्या कहा जाता है. ऑप्शन ए, ट्रेडेड ऑफरिंग. ऑप्शन बी, पब्लिक मार्केट्स. ऑप्शन सी, इशुएंस ऑफरिंग. और ऑप्शन डी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. प्लीज मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स बिलो. आपने मेंशन कर दिया बेटा, कमेंट बॉक्स में आपने आंसर को मेंशन कर दिया प्लीज. क्वेश्चन नंबर 20, योर ऑप्शन शुड बी ए, बी, सी और डी, वॉट एवर यू लाइक. बहुत इजी क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है ये. आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं और ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा. लेट मी शो यू द करेक्ट आंसर इज इनिशियल पब्लिक ऑफर.
जो पब्लिक को ऑफर किया जाता है फर्स्ट टाइम, उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, राइट? शॉर्ट फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि यू मस्ट हैव लर्न समथिंग, आइदर यू विन और यू लर्न। आपने बहुत बार जीता भी होगा और बहुत बार आपने लर्न भी किया होगा। इन बोथ द सिचुएशन यू आर द विनर। थैंक यू so much for winning this quiz. You are absolutely the ultimate winner. Congratulations to all, and do refer this code. Do use this code as for joining the plus courses as Ram Ahuja. See you soon in the plus courses. Take care. Bye bye. See you there in the plus courses.